Hello students. So today we'll be seeing chapter number 11 of your class 10th NCERT book. The chapter name is Human Eye and the Colorful World. So students, you have studied in the previous chapter about the refraction of light, the reflection of light from lenses and mirrors. You have also studied about nature, position, and the relative size of images formed by various kinds of lenses. So, students, those ideas, what we have learnt in the earlier class, will be used here to understand about the human eye, and we'll be able to study the human eye, the parts of human eye, how the human eye enables us to see the objects around us. So everything we are going to read in this chapter. What is the function of the lens in the human eye, and why do we need spectacles or glasses in order to correct various kinds of defects in our eye. So all these things we are going to study in this chapter. So let us begin our chapter. So human eye. As you know, human eye is the sense organ which helps us to see the colorful world around us. So we will see the diagram. This is a simple diagram of human eye. You can see that it has got various parts. So students, human eye is one of the most valuable and sensitive sense organs because it allows us to see the wonderful world and the colors around us. On closing our eyes, we can identify the objects to some extent by their smell, by its taste, by sound they make, or by touch. But students, it is impossible to identify the colors when you close your eyes. So, all these sense organs, human eye is the most significant one as it enables us to see the beautiful, colorful world around us, isn't it? So let us see now the various parts of human eye. The first part of human eye is, so human eye, student, it acts like a camera. You have seen camera when you are capturing something. जब आप किसी कैमरे से फोटो लेते हो तो the images are formed. Similarly, human eyes, we can also compare it with a camera. So its lens system, it forms image on the light sensitive screen known as retina. Like in our camera, we have a screen where the image is formed. In our eye, we have got this screen and that is known as retina. So our first part of human eye is the retina. What is retina? So here you can see this screen here, this screen at the back of the eye, it is known as retina because on this screen it's a lens system where the image will be formed on this sensitive screen. It has got cells, it has got light sensitive cells. So we require a screen on which the image should be able to form, and for us, for our eye, that screen is known as retina. Okay, so let us move to the next part now. The eyeball. So you can see students, this is the eyeball. The entire eye is like a spherical ball. ये एक spherical ball की तरह होती है, and it has the diameter of this entire ball is almost 2.3 सेंटीमीटर. तो इसका diameter कितना होता है? Diameter का मतलब है ये, अगर ये रेडियस है तो ये एंटायर लेंथ, तो ये जो है ये होता है 2.3 सेंटीमीटर्स के अप्रॉक्सीमेटली, तो बहुत छोटी होती है. तो इट इज़ अ जनरल आई, ह्यूमन आई दैट वी आर कंसिडरिंग, है ना. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. The light enters the eye through a transparent membrane called cornea. So students,
जो लाइट है वो कॉर्निया के थ्रू पास होती है और वो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। तो आपको डायग्राम में दिख रहा है कॉर्निया क्या होती है, आपकी आई के ऊपर जो ये जो आपको लेयर दिख रही है थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है ये, और ये जो लेयर है ये कहलाती है आपकी कॉर्निया, राइट। लाइट इसके थ्रू पास होती है सबसे पहले। Next, behind the cornea is a muscular diaphragm that is known as iris। तो इसके पीछे बच्चों आपको ये जो डायफ्राम दिख रहा है, डायफ्राम मस्कुलर डायफ्राम यानी मसल से बना हुआ होता है और इसे हम कहते हैं आइरिस। तो बच्चों कई बच्चों की आपने देखा आइज़ जो होती हैं ब्राउन होती हैं, कई लोगों की आइज़ ग्रे होती है, ग्रीन होती हैं, ब्लैक। ओके, सो ये जो कलर ऑफ द आई है इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ दैट मसल्स। तो ये जो आइरिस है ये कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है और इसे हम कहते हैं आइरिस, ठीक है। नाउ आइरिस के बीच में आपने ये जो पार्ट देखा है, तो आइरिस आपको दिखाई दे रहा है, ये मसल्स जो हैं दोनों तरफ जो मसल्स बनी हुई हैं ये है आइरिस। अब ये जो आइरिस के बीच में ये जो आपको गैप दिख रहा है दैट इज़ नोन एज प्यूपिल। सो दैट इज़ द प्यूपिल। तो ये आइरिस के बीच में जो आपको गैप दिख रहा है इसे हम कहते हैं प्यूपिल। तो ये प्यूपिल ही जो है बच्चों इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स इनटू द आई। तो ये प्यूपिल को कौन कम ज़्यादा कर पाएगा, तो प्यूपिल अपने आप एक्सपैंड होगा, अपने आप कम होगा, ऐसा नहीं होता। इसके लिए जो आइरिस है ये इसको कंट्रोल करता है। तो आइरिस अगर पीछे की तरफ मूव करता है तो हमारा प्यूपिल एक्सपैंड करता है, और ये जब दोनों जो पार्ट्स हैं आइरिस यानी दोनों जो मसल्स हैं ये आपस में पास में आते हैं तो हमारा प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आपने ये देखा होगा कि व्हेन यू गो आउट व्हेन द लाइट इन द सन, तो जहाँ ज़्यादा लाइट आपकी आंखों में पड़ती है तो वहाँ पर ये जो आइरिस है, ये दोनों जो आइरिस की लेयर है, सपोज आप करें ये दोनों आइरिस हैं, ये दोनों एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। तो ये जो बीच में जो गैप दिख रहा है आपको जहाँ से लाइट पास करेगी ये कम हो जाता है क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा है बाहर। पर व्हेन यू एंटर इनटू ए डार्क रूम, तो उस केस में ये जो मसल्स हैं ये मसल्स दूर दूर हो जाते हैं, यानी ये जो गैप जो पहले दिख रहा था अब ये दूर हो गया। तो यहाँ आपके पास में प्यूपिल जो है बड़ा हो जाता है साइज। तो साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस। सो व्हाट, अगर आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि व्हाट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, the size of the pupil will be controlled by iris. All right, okay, so this opening is known as pupil, and the pupil controls and regulates the amount of light entering into the eye। तो pupil ही है जहाँ से हमारी जो रेज हैं, जो लाइट रेज हैं वो लेंस के ऊपर फॉल करती हैं। तो pupil it allows the light to pass into the lens and to pass into the lens, and the lens will finally focus it on the retina. Okay, the eye lens helps to focus the image of the objects on the retina। तो ये जो आई लेंस है यहाँ से आपकी जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो फोकस पे होती है। ये किस तरीके का लेंस है बच्चों, तो आपने ये देखा है ये लेंस एक तरह से कैसा लेंस है ये लेंस, इस लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस से जब लाइट रेज पास होती है तो आपको मालूम है वो कन्वर्ज हो जाती हैं, है ना। कॉन्वेक्स लेंस से जब लाइट रेज पास होंगी तो वो क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। तो किस जगह पे कन्वर्ज होके कहाँ फॉल करती है बच्चों, ये फॉल करती है रेटिना पे। तो जब भी यहाँ पर लाइट रेज अंदर आती हैं तो दे विल फॉल ऑन टू द रेटिना, इस तरीके से ये रेटिना पे फॉल करती है। ओके, सो अब एक पार्ट आपका इसमें आपको दिख रहा होगा बच्चों कि देर इज़ अ सीलियरी मसल्स ऑल्सो। सो ये जो मेरी लेंस है बच्चों, ये जो मेरा लेंस होता है ना, यहाँ जो आपको ये 1 सेकेंड, ये यहाँ जो आपको इस फिगर में जो लेंस दिख रहा है, सो इट इज़ अटैच्ड विथ सम मसल्स। सो दीज मसल्स ऑन बोथ द एंड्स आर नोन एज सीलियरी मसल्स। तो ये जो सीलियरी मसल्स हैं, ये सीलियरी मसल्स कंट्रोल करती है फॉर द लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। कैसे करती है बच्चों, देखो जब ये जो सीलियरी मसल्स हैं, सपोज करें कि ये साइड में ये मेरे पास में सीलियरी मसल्स है और ये लेंस से अटैच्ड है।
तो जब इनके बीच इनमें टेंशन आ जाता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं सिलियरी मसल्स, तो ये जो लेंस है ये थिन साइज हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि जब ये ऐसे करके स्ट्रेच कर रही हैं, है ना, जब ये स्ट्रेच करती है तो मेरा लेंस जो है वो और थिन मैंने पतला हो जाएगा। और जैसे ही ये ज़्यादा लूज़, जब ये लूज़ हो जाती हैं ये मसल्स और ज़्यादा लूज़ हो जाएंगी, ओके, जब ये रिलैक्स करती हैं तो जो लेंस है ये थिक हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो सीलियरी मसल्स हैं इट अलाउज द लेंस टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए सीलियरी मसल्स काम में आती हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा ये जाता है कि व्हाट कंट्रोल्स द फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन आई लेंस, then you will say the ciliary muscles are the one which controls the uh, lens to adjust its focal length. All right, okay. So the ciliary muscles, it helps to change the curvature of the lens. Curvature of the lens means what? उसको थिन या थिक होने में मदद करती है। तो इट अलाउज इट टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। तो ये कितना अच्छा सिस्टम है, देखिए, जहाँ पर हमारा जो लेंस है वो इतना गॉड गिफ्टेड है कि वी आर एबल टू कंट्रोल इट। सो वाई इट इज़ नेसेसरी टू चेंज द फोकल लेंथ? बच्चों इसीलिए नेसेसरी है बिकॉज द ऑब्जेक्ट वेरीज फ्रॉम अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस टू अ लार्ज डिस्टेंस। अगर मुझे पास की डिस्टेंस देखनी है और या दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो मेरा फोकल लेंथ जो आई का है वो चेंज होना चाहिए। तो जब हमारा फोकल लेंथ चेंज होने के लिए कुछ ऐसा कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो ऑटोमेटिक चेंज हो पाए। तो वो कौन करता है? वो सीलियरी मसल्स हेल्प करते हैं। तो एक तरीके से वी आर एडजस्टिंग आवर फोकल लेंथ। जैसा आपने कैमरा में देखा है, आप लोग अपना लेंस को जो है जूम आउट कर लेते हो, कभी जूम इन कर लेते हो, उसी तरीके से हमारा जो ह्यूमन आई है उसकी हालांकि एक लिमिटेशन है, पर वी आर एबल टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आवर लेंस। ओके, सो नाउ लेट अस सी अबाउट हाउ द ह्यूमन आई एक्चुअली वर्क्स। किस तरीके से ह्यूमन आई काम करती है वो हम देख लेते हैं। तो बच्चों, द लेंस फॉर्म्स द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। आपको जैसा कि मैंने पहले बताया है, पुराने लेक्चर्स में आप लोगों को पता है, पिछले चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा था, क्योंकि लेंस एक कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस में बच्चों इमेज कैसी फॉर्म होती है? कॉन्वेक्स लेंस में जब भी इमेज फॉर्म होती है तो आपको पता है इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, ये आप लोगों को पता है। तो ह्यूमन आई का जो लेंस है दैट इज़ अगेन अ कॉन्वेक्स लेंस। इसलिए जो हमारा जो इमेज फॉर्म होता है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। हाउ द इमेज इज़ फॉर्म? इट इज़ फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब आप लोग ये बोलोगे कि अगर इमेज रेटिना के ऊपर इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है तो हाउ वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स एज स्ट्रेट? उसको इरेक्ट कौन कर रहा है? उसे वापस जो वो इन्वर्टेड जो इमेज हुई है उसको सीधा कौन कर रहा है? सो बच्चों उसके लिए हमारा ब्रेन इंटरप्रिटेशन काम करता है। तो वट एवर इमेज विच इज़ फॉर्म्ड ऑन दिस रेटिना, दीज सिग्नल्स आर देन टेकन बाय द ऑप्टिकल नर्व्स टू आवर ब्रेन, जहाँ पर ब्रेन में जाके ये जो इन्वर्टेड इमेज है इसको दोबारा इंटरप्रेट करके सीधा किया जाता है। बट इट हैपन्स इन फ्रैक्शंस, वेरी वेरी फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स, यानी बहुत क्विक होता है तो आप लोगों को पता नहीं चलता। तो ये सारा एक आप इसको बोल सकते हैं इट वर्क्स लाइक एन ऑटोमेटिक मशीन। तो इतना फास्ट होता है कि हम वी आर नॉट एबल टू सेंस कि ये सबसे पहले जो इमेज है वो उल्टा, वो बहुत फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में ये पॉसिबल हो जाता है। ऑलराइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। The light sensitive cells in the retina then produce the electrical signals which are carried by the optic nerves। तो ये जैसा मैंने आपको बताया है, तो ये जो यहाँ जो इमेज फॉर्म हुई है इस रेटिना पे जो भी इमेज फॉर्म होती है दे आर इन द फॉर्म ऑफ the cells which are present in the retina, they convert this into some electrical signals। इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रोड्स एंड कोन्स करके सेल्स होते हैं हमारे। तो रोड्स एंड कोन्स किस किस के काम में आते हैं? तो आप लोगों को पता है कि जो ब्राइट लाइट है
और जो जिसको हम कहते हैं कलरफुल चीज़ें देखने के लिए कोन्स काम में आ रहे हैं, और जो डार्क एंड देखने के काम में आते हैं वहाँ आप लोग रोड्स जो होते हैं वो सेल्स काम में आते हैं। तो रेटिना में दोनों तरीके के सेल्स होते हैं। तो नाइट विज़न एक तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि नाइट विज़न के लिए रोड सेल्स एक्टिव होता है, और ब्राइट में आपके कोन सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। सो ये जो सेल्स हैं दे कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं, एंड दीज आर कैरिड बाय देन द ऑप्टिक नर्व्स। ये जो ऑप्टिक नर्व है इट टेक्स इट टू द ऑप्टिक नर्व इज कनेक्टेड, इट इज़ ए नर्व विच इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन। तो ये सिग्नल्स अब कहाँ पर कौन लेके जा रहा है, ये ऑप्टिक नर्व्स कहाँ ले जा रहे हैं, ये ब्रेन में लेके जाते हैं। Okay, and finally what will happen? Finally, the brain processes the information and sends the message to the eye, and then we are able to see the object. तो बच्चों आपने देखा बहुत ब्यूटीफुल तरीके से वी आर एबल टू सी दैट हाउ द ह्यूमन आई फंक्शंस। अब बच्चों नेक्स्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। What do we mean by power of accommodation of human eye? The ability of the eye lens to see both near and distant objects by adjusting its focal length is known as power of accommodation. तो जैसा मैंने आपको बताया था बच्चों, जो लेंस है ये अपनी पावर को यानी अपने फोकल लेंथ को, पावर यू नो पावर क्या होती है बच्चों, पावर इज़ गिवन बाय 1/f। तो अगर मैं अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं अपनी पावर को भी चेंज कर सकता हूँ। लेंस की जो पावर है वो चेंज हो सकती है। अकोमोडेशन का मतलब है एज पर नीड। जैसे कि हम ये बोलते हैं ना कि ट्राई टू अकोमोडेट व्हेन यू आर यूजिंग दिस वर्ड अकोमोडेट मतलब यू ट्राई टू एडजस्ट। So the tendency of a human eye to adjust its focal length, the ability of the human eye to adjust its focal length, अपनी फोकल लेंथ, यानी कि ये कभी थिन हो जाता है और कभी बहुत थिक हो जाता है। किसकी हेल्प से होता है, हमें पता है सीलियरी मसल्स जो हैं, इन सीलियरी मसल्स की हेल्प से ये थिन और थिक होकर के अपना फोकल लेंथ एडजस्ट कर पाता है। फोकल लेंथ एडजस्ट करने से ये अपनी पावर को अकोमोडेट कर पाता है। तो ये जो फिनोमिना है ये पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाता है। तो ये बच्चों कई बार एग्जाम्स में आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट डू वी मीन बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन। सो पावर ऑफ अकोमोडेशन मीन्स व्हाट, दैट इट इज़ द एबिलिटी ऑफ आवर आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, है ना, टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, दैट इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। ओके, द आई लेंस इज composed ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। तो बच्चों ये जो लेंस, हमारा जो आई लेंस है बच्चों, ये जो लेंस है ये ग्लास की तरह एकदम रिजिड नहीं है, इसमें जेली लाइक फाइब्रस मटेरियल फिल्ड अप होता है। ये जो जेली लाइक मटेरियल है ये अलाउ करता है हमारे लेंस को, फ्लेक्सिबिलिटी देता है टू गेट इट साइज एज थिन और थिक डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। तो आई से कितना दूर ये ऑब्जेक्ट है उसको चेंज करने के लिए, अगर ये बहुत सॉलिड होता, अगर ये लेंस बहुत सॉलिड होता तो ये एडजस्ट नहीं कर पाता। तो ये इसको एडजस्ट होने में कौन मदद कर रहा है, सीलियरी मसल्स। तो ओके, सीलियरी मसल्स तो बाहर से स्ट्रेच हो रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पर ये जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ होता है। जैसे आपने देखा है जेली अपना जो शेप है वो इजीली चेंज कर लेती है, उसी तरीके से ये लेंस भी जो है इट इज़ एबल टू चेंज इट्स शेप। अच्छा बच्चों, कंस्ट्रक्शन में दो चीज़ें आप लोगों को और बताना चाहूँगा मैं, कि आप लोगों ने यहाँ पर ये एक्वस ह्यूमर देखा है। ये एक्वस ह्यूमर इज़ अ मटेरियल विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। ये जो लेंस है इनके बीच में ये जो फ्लूइड भरा है ना, वाटर लाइक सब्सटेंस भरा है, दिस इज़ नोन एज एक्वस ह्यूमर। और ये लेंस और रेटिना, इनके बीच में ये जो वाटर लाइक मटेरियल है इट इज़ नोन एज विट्रियस ह्यूमर। सो एक्वस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, एक वाटर लाइक फ्लूइड है, यू कैन कंसिडर इट लाइक प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब लिक्विड, बट कंटेनिंग लो प्रोटीन कंसनट्रेशंस, इसमें कुछ प्रोटीन कंसनट्रेशंस होते हैं ना एक्वस ह्यूमर में। इसी तरीके से जो विट्रियस ह्यूमर है इट इज़ ऑल्सो ए ट्रांसपेरेंट कलरलेस gelatinous mass, it is also filled in between the space between
द लेंस एंड द रेटिना। तो ये भी आपके कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को लिखना है। चलिए बच्चों, तो अब पावर ऑफ अकोमोडेशन आप लोगों को समझ आ गया है। ओके, so the curvature we have already studied. The curvature will be changed by what? By ciliary muscles in the near point. नियर पॉइंट से क्या मतलब है बच्चों? जैसे नियर पॉइंट जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, नियर मतलब पास में। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ तक हम लोग एक ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं, वो नियर पॉइंट कहलाता है। यानी आपने देखा होगा कई बार, आप जो बुक है उसको पढ़ने के लिए आंखों से एक डेफिनेट दूरी पर ही बुक पढ़ पाते हो। आपकी जो आइज़ हैं, उन आइज से एक डेफिनेट डिस्टेंस पे, अगर ये हम आई माने तो इससे डेफिनेट डिस्टेंस पे आपको अपनी बुक रखनी होगी। बहुत ज़्यादा पास में अगर आप बुक लेके आओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी इट प्रॉपरली। ये मैं बात कर रहा हूँ आपकी नॉर्मल आई के लिए। अगर आई में डिफेक्ट है तब आपको बहुत पास में लेके आना पड़ता है। नॉर्मली फॉर ए नॉर्मल आई, ये जो डिस्टेंस है जो आपके लेंस से, ह्यूमन आई के लेंस से ये जो डिस्टेंस है, इट इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों? 25 सेंटीमीटर के बराबर है। सो व्हाट डू वी मीन बाय इट इज़, व्हाट डू वी मीन बाय नियर पॉइंट? द नियर पॉइंट इज द डिस्टेंस, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस, यहाँ से आई लेंस से लेकर के ऑब्जेक्ट के बीच की वो डिस्टेंस जो क्लियरली हमको, दैट अलाउज अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली, सो दैट इज नोन एज नियर पॉइंट. So minimum distance at which the eye can see the objects clearly. Okay, it is the minimum distance where the eye is able to see the object clearly. तो सबसे साफ हमको कहाँ तक दिखाई देता है? 25 सेंटीमीटर तक जो ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में वो ब्लर होने लगता है. आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल आई. ओके, इफ़ इट इज़ ए डिफेक्टेड आई, ये नियर पॉइंट चेंज हो जाता है और तभी हमको ग्लासेस पहनने पड़ते हैं और स्पेक्टिकल्स पहनने पड़ते हैं टू इम्प्रूव द आई. ओके, एंड टू रिमूव द डिफेक्ट. तो नॉर्मल आई, नॉर्मल विजन के लिए ये नियर पॉइंट कितना होना चाहिए बच्चों? ये होता है 25 सेंटीमीटर. ऑल राइट, देन कम्स योर फार पॉइंट. तो फार पॉइंट बच्चों, अगर मैं इस 25 सेंटीमीटर को कंपेयर करूँ, 25 सेंटीमीटर बहुत छोटा है. अगर मैं, आप लोगों ने देखा, आपको दूर दूर तक अगर एक बहुत प्लेन हो, लैंड एक बहुत प्लेन हो, तो यू आर एबल टू सी टू ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, कई किलोमीटर्स तक आप देख पाते हो ना. उसके बाद तो अर्थ क्या होती है? अर्थ उसके बाद में रोटेट होने के कारण, स्फेरिकल होने के कारण क्या हो जाता है, आपका विज़न उसके आगे नहीं देख पाते आप, है ना. तो एक डेफिनेट डिस्टेंस है जहाँ तक यू विल बी एबल टू सी. पर अगर मैं इस 25 सेंटीमीटर को इस डिस्टेंस से कंपेयर करूँ, जो कि इज़ इन किलोमीटर्स, तो किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो गई एज़ कम्पेयर टू दिस सेंटीमीटर. तो आई कैन से दैट आई एम एबल टू सी एज़ कम्पेयर टू दिस नियर पॉइंट, माई फार पॉइंट इज़ एट इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर तक देख पाता हूँ एज़ कम्पेयर टू द नियर पॉइंट. इसीलिए इन्फिनिटी क्या है? एक रिलेटिव टर्म है. तो कई बच्चे बोलेंगे इन्फिनिटी यानी बहुत दूर तक मैं देख पाऊँ, अनंत तक. अनंत तक का मतलब ये होता है कि व्हेन यू कंपेयर योर नियर पॉइंट, उसके मुकाबले आपका फार पॉइंट इन्फिनिटी है, बहुत दूर तक है. ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है. ऑल राइट, सो here you can see the farthest distance up to which we can see the object clearly is known as far point of the eye, and for normal eye it is between 25 centimeter to infinity. यानी आप कहाँ तक देख पाते हो? इन्फिनिटी तक. किसके कंपैरिजन में? 25 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में इट इज़ इन्फिनिटी. कई किलोमीटर्स तक आप लोग प्रॉपरली देख पाते हैं इफ़ योर आई इज़ नॉर्मल. ओके, इट इज़ नॉट डिफेक्टेड. सो here you can see the far point is at infinity. कहाँ तक है ये इन्फिनिटी तक है. तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही. आगे जो हम क्लास लेके आएंगे, we will be studying about various kinds of defects of vision, and we will also be studying about its the correction in these defects, how we will be able to correct all these defects. So majorly in our syllabus also, we will be studying about three kinds of defects, that is myopia, hypermetropia and presbyopia. So we will be studying about this in our next class. Thank you very much students.
and have a good day.